بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخصوص کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعید۔ امید ہے آپ حقوق العباد ادا کرنے میں ہمہ وقت مصروف ہوں گے، کیونکہ حقوق العباد کے ذریعے ہی اللہ عز و جل کی رحمت شامل حال رہے گی، اور ماہ سیام کا بھی یہی پیغام ہے۔ آج بھی پروگرام کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں تلاوت اور نعت، اور دوسرے حصے میں ماہ سیام اور دکھی انسانیت کی خدمت کے حوالے سے معروف سماجی رہنما، صحت فاؤنڈیشن کے مرکزی عہدیدار جناب عابد مکی اور چیف ایگزیکٹو YCDO اور فرد شناس پولیس آفیسر جناب رانا ظہیر بابر گفتگو کریں گے۔ سو میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں حافظ سمیر عباس کو، کہ جو آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں اور تلاوتی کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ حافظ سمیر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور اسی طرح نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد مبین پنج تنی موجود ہیں۔ مبین، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ حافظ سمیر عباس جو ہے وہ تلاوتی کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، پروگرام کا آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. اور ناظرین عزیزم، محمد مبین پنجتنی کو نعت کے شعر کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں کہ حشر میں اس طور سب کے سامنے جانا گیا، حشر میں اس طور سب کے سامنے جانا گیا اور حضرت حسان کی نسبت سے پہچانا گیا. جناب محمد مبین پنجتنی نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جی مبین، آغاز کیجیے. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں وہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، کئی نسلوں سے غلامی کہ یہ رشتے ہیں بحال، کئی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بوڑھا پہ میں خدا دا ہمیں یوں در سے نہ ٹال
تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جو دو قدم ہے چہے بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ عزیزم حافظ سمیر عباس، آپ کا شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ عزیزم محمد مبین پنجتنی، آپ کا بھی شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں موجود تھے۔ اور ناظرین، ایک پروگرام وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو ہوگی، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، کبھی ممی کا ہے دلہا، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، ٹوائس ہیلدی فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اور شمع بناسپتی۔ بولے دل کی بولیاں۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ کبھی کرونا۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ، WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ، اور دے مکمل تحفظ۔ یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات۔ پلائر،
1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्कदा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी? तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़ मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज़ कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन, मखसूस का प्रोग्राम रमज़ान ज़ीशान और मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी। हमारा आज का मौजू माह सयाम और दुखी इंसानियत की खिदमत। आज इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए जो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ कराए देता हूं। जनाब राना ज़हीर बाबर, आप न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी तौर पर जाने जाने वाली समाजी तंजीम YCDO के चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियां भी आसान तरीके से निभा रहे हैं। अलावा जी फ़र्जशनास पुलिस ऑफिसर होने के नाते भी एक आलम में खूब जाने जाते हैं। जनाब राना ज़हीर बाबर, आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम रमज़ान ज़ीशान में तशरीफ़ लाए। और इसी तरह मखसूस और रोज़ाना में बदलता ज़माना के ज़ेर एहतमाम जो मेडिकल कैंप्स मुनक़िद होते हैं, उसमें समाजी खिदमात के हवाले से एक मारूफ नाम जनाब आबिद मक्की हमारे साथ मौजूद हैं। आप सेहत फाउंडेशन के मरकज़ी ओहदेदार भी हैं। आबिद मक्की, आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। राना साहब, पहला सवाल आपसे है कि YCDO के जो इब्तदाई अय्याम या आगाज़ की कहानी है, जो किसी प्रोग्राम में मैंने सुनी कि उसका आगाज़ कैसे हुआ, तो वो आपकी ज़ुबानी जो है वो मैं चाहूँगा कि नाज़रीन तक पहुँचे। जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। राजा साहब, बहुत शुक्रिया, और मक्स न्यूज़ का भी शुक्रिया कि इस कार खैर के हवाले से आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। YCDO की जो इब्तदा है वो इस हवाले से दिलचस्प है कि ये मेरे बचपन की बात है, और गालिबन स्कूल दौर की बात है कि उस वक्त में जब मेरे वालिद साहब जो हैं वो
हेल्थ डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक था। तो पहली बार मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, गालिबन 9th या 10th क्लास का मैं स्टूडेंट था, तो मैंने उन्हें कहा कि एक डिस्पेंसरी जो है वो बनाई जाए। हमारी रिहाइश उस वक्त कासमपुर कॉलोनी, एक कच्ची आबादी है, वहाँ पर थी। वहाँ पर जो गरीब लोग हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर जो है वो पेशेंट्स को देखें और मेडिसिन मैं प्रोवाइड करूँगा। तो उस वक्त में वसाइल इतने कम थे, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उस वक्त हमारे पास इतने सोर्सेज भी नहीं थे कि हम एक डिस्पेंसरी का फर्नीचर खरीदते। तो पहली बार हमने जो है वो जो हमारा टूटा फूटा फर्नीचर जो हमारी छतों पर इधर उधर पड़ा था वो मैंने उतारा, और उतारने के बाद उन कुर्सियों के बुनाई करने के पैसे हमारे पास नहीं थे। तो फिर हमने उसको जो लकड़ी के फट्टे हैं उन्हें काटा और उन कुर्सियों को बनाया। मैंने अपने हाथ से उसको पेंट किया। और जिस डिस्पेंसरी जो रूम था वो पहले मैं बता चुका कि उसकी जो छत थी वो पत्तल की बनी थी, जो कानों की छत होती है, जो पुराने जमाने पुराने जमाने उसे भी मैंने जो है थोड़ा सा डेकोरेट किया। और इस तरह YCDO की पहली डिस्पेंसरी कि जब मुझे याद है कि जब मैं गया मेडिकल स्टोर पे तो मैंने 100 गोलियां अपने हाथ से काउंट करके लिफाफे में डाली। तो ये जो है ये आगाज था। वाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में 1 करोड़ रुपए की दवाई हम खरीदते हैं। सुभान अल्लाह। और 8 हॉस्पिटल्स हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रनिंग में है और फुल फ्लेज फैसिलिटीज के साथ चल रहे हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स हमारे माशाल्लाह जो है वो चल रहे हैं, जहाँ रोजाना जब हम वहाँ देखते हैं ना, तो और जब लोगों की लाइन लगी होती है और लोग पानी भर रहे होते हैं तो बड़ी तस्कीन मिलती है, तमानियत मिलती है, बेशक बात नहीं है। और इसी तरह जो है 100 से जायद बेवा खवातीन हैं जिनको हर महीने राशन जो है मुस्तकिल बुनियाद पर दिया जा रहा है। उसकी भी हम प्रॉपर एक वेरिफिकेशन करते हैं। ऐसी खातून जो बेसहारा हो, जिसके छोटे बच्चे हो, कमाने वाला कोई ना हो, उसको मुस्तकिल बुनियादों पे हम जो है वो राशन देते हैं। और 2000 लोगों का रोजाना खाना जो है वो हम माशाल्लाह माह सयाम में तकसीम हो रहा है। हाँ, माह सयाम में तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सहरी और अफ्तारी चल रही है। और आम दिनों में 2000 लोगों का खाना सिर्फ 30 रुपए में हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये भी हमने एक रस्मन पर्ची रखी हुई है 30 रुपए, ताकि जो है जो खुददार लोग हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जहाँ पे मुफ्त खाना बट रहा हो वहाँ पे सफेद पोश खुददार आदमी नहीं आता वहाँ, लेकिन यहाँ माशाल्लाह हर तबके का आदमी जो है वो बड़े ऑनर के साथ, वो भरम रह जाता है के साथ वहां से खरीदता है। और फिर इसके अलावा ये कि जो खवातीन जिनको हम राशन दे रहे थे तो उनको हमने देखा कि उनके बच्चे जो हैं वो स्कूलों में दाखिल नहीं हुए, और बच्चे जो है वो किसी डेंटर की दुकान पे काम कर रहे हैं और या किसी मैकेनिक की दुकान पे काम कर रहे हैं। तो हमने महसूस किया कि इनकी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा, ये तो सिर्फ रोटी खा रहे हैं। उस पे फिर हमने 1 साल पहले YCDO वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो तमाम खवातीन जिनको हम राशन दे रहे थे, वो खवातीन और उनकी बच्चियां, उनको हमने वहाँ पे एडमिशन दिए। वहाँ पे स्टिचिंग जो है वो अच्छे लेवल पे हम उनको सिखा रहे हैं, और उसमें डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों लेवल पे उनकी ट्रेनिंग हो रही है। और इसी तरह जो है ब्यूटिशियन, और ब्यूटिशियन के लिए हमने जो है बहुत हाई फाई लेवल का एक ब्यूटी पार्लर वहाँ बनाया ताकि उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो। वाह। और इसी तरह कंप्यूटर एजुकेशन के हवाले से वहाँ पे वर्किंग हो रही है, फ्रीलांसिंग, और आजकल जो है अमेज़न वगैरह इन है उसमें उनकी पढ़ाई हो रही है। यानी अब हम एजुकेशन की तरफ जो है कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे इदारे बनाए जाए। वाह। तो ये मैंने आपको पहले दिन से और आखिरी दिन तक की कहानी मुख्तसर अल्लाह सलामत रखे ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो जो अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि पुल बना, चाह बना, मस्जिदो तालाब बना, और फैज़ मंजूर है तो फैज़ के असबाब बना। वाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जनाब आबिद मक्की, आपसे जब तारुफ हुआ तो आपने बताया कि आपकी पैदाइश जो है वो मक्का मुकर्रमा में हुई। यकीनन एक बड़ी सादत की बात है, और उस हवाले से आपका नाम का हिस्सा भी हुआ। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। आप एक फार्मास्यूटिकल से वाबस्ता हैं, समाजी खदमात पे आपका हवाला है, सेहत फाउंडेशन के अहदेदार भी हैं। आप क्या समझते हैं कि मुआशरती तौर पर अवाम व ख़वास को
दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए किस तरह दावत दी जा सकती है कि वो आपके साथ शामिल हों? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो सर मैं अपना बताना चाहूँगा कि मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे कुछ दोस्त अहबाब डॉक्टर हजरात भी होते हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं सैयद अब्दुल समी शाह साहब, उनके साथ जब मेरी अटैचमेंट हुई काफ़ी ज़्यादा, तो फिर उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई, सीहत फाउंडेशन के हवाले से। तो उसमें उन्होंने हमें अपने साथ इंगेज किया। वो मुस्तकिल बुनियादों पे कैंप्स करते रहते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो कैंप कंटिन्यूसली बेसिस पे होता है, जिसमें फ्री मेडिसिन मिलती है, फ्री टेस्ट, शुगर टेस्ट, हेपेटाइटिस सी का टेस्ट, और इसके अलावा जितने भी टेस्ट हैं वो सारे फ्री हम करते हैं। और उससे ये फ़ायदा ये होता है कि अवामुन नास में जितने भी साइट्स पे जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं या जो फीस पे नहीं कर सकते, उसमें हम हर किस्म के कंसल्टेंट्स, गायनी के हवाले से, आर्थोपेडिक के हवाले से, कार्डियोलॉजी के हवाले से तमाम लोगों को मदऊ करते हैं वहाँ पर। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि वो लोग जो फीस पे नहीं कर सकते, भारी भारी फीसें आजकल डॉक्टर्स रात की, तो वो वहाँ पर आते हैं और अपना जो है ना वो ट्रीटमेंट कराते हैं। उनको हम फ्री मेडिसिन एक तो देते हैं, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा जो उनका ऑब्जेक्टिव था, या हम जो उनके साथ एक टीम वर्क के तौर पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव सर हमारा यही है कि तमाम लोग जितने भी हमारे पसमानदा लोग हैं यहाँ पर इस मुआशरे के अंदर, उन तमाम लोगों को उठाया जाए ताकि वो इस मुल्क को कौम के लिए फ़ख्र का बाइस बने। और इसके अलावा सबसे जो ऑब्जेक्टिव है इसके अलावा ये भी है कि जो रमज़ान के हवाले से, तो डेली बेसिस पे वहाँ पर जो है मगरिब के टाइम इफ्तार का हम स्पेशल बंदोबस्त करते हैं वहाँ पर। तो इलाके के जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं वो वहाँ पर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीहत फाउंडेशन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि यतीमों की, बेवाओं की कफालत के लिए भी राशन वगैरह का इंतज़ाम भी मौजूद होता है। तो मकसद जो ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि हम तमाम टीम का, हमारी का, कि यार हम जितना हो सके हम अपने पिसे हुए तबके को जो है वो उठाएं। तो ये हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अच्छा राना साहब, अमूमन तस्वुर ये है कि जो भी समाजी तंजीमें चल रही हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, लोग ये समझते हैं कि शायद उन्हें बाहर से कोई डॉलर, कोई रियाल या इस तरह की दीगर चीज़ें जो है ना वो शायद सपोर्ट मिल रही है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? ये हमारे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक तो YCDO कोई NGO नहीं है, ठीक हो गया। इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये दोस्तों का ग्रुप है, ठीक हो गया। उसमें मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्तों के आगे दोस्त हैं। अब हम तकरीबन 400 लोग हैं, 400 लोग हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, उसमें कारोबारी लोग भी हैं, उसमें मुलाज़मत पेशा लोग भी हैं। तो हर किस्म के लोग हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि सब के सब लोग बेलौस सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, मखलूक की खिदमत करने के लिए जुड़े हैं, और कोई मकसद नहीं। सुभान अल्लाह। यानी इतना खूबसूरत गुलदस्ता है वाह, कि जिसमें मसलक के हवाले से चाहे कोई बरेलवी हो, चाहे कोई देवबंद हो, चाहे कोई अहले हदीस हो, चाहे कोई अहले तशय्युह हो, हर मसलक का आदमी इस गुलदस्ते के अंदर शामिल है, और सब के सब सिर्फ मखलूक की खिदमत करके अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। वाह वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों का डे बाय डे इजाफा हो रहा है। मैं अभी कल ही जो है हमारी ब्रांच हसनाबाद है, वहाँ मौजूद था। तो एक साहब जो है वहाँ मेडिसिन लेने आए, और जब एक साहिब हैसियत आदमी एक बहुत ही अच्छी जगह पे साफ सुथरा एनवायरनमेंट हो, और वहाँ से जो है MBBS डॉक्टर से चेकअप करवाए, और चेकअप करवाने के उसे दवाई भी मिल जाए, और वो सारा कुछ लेने के बाद जिस कैटेगरी में वो ट्रीट हो रहा है उसका 100 रुपया खर्चा है, तो वो जरूर पूछता फिरेगा कि भाई ये किसने बनाया है। तो वो अस खुद उसने पूछा, और वो जो स्टाफ था, मैं इत्तेफाक से वहीं तो मेरे पास ले आए, और उसने जो है बाज़ाब्ता वहाँ पे जो है उसने सब हमारा सब लोगों ने डोनेट लव मनी एंड टाइम। वाह, कोई बात नहीं, आप पैसे नहीं है, वाह वाह, तो आप मोहब्बत का इजहार तो कर सकते हैं, अप्रिशिएट तो कर सकते हैं। वाह वाह वाह। अगर आपके पास जो है पैसे नहीं, आप टाइम तो दे सकते हैं। तो ये सब कुछ सदका है। वाह वाह वाह। अगर आप एक कार खैर में खैरुन्नास मय्यनफुन्नास, बेहतरीन लोग वो हैं कि जो लोगों के लिए फायदा मंद है। वाह वाह वाह। और
اس فائدہ پہنچانے میں اور پھر بیسک مقصد کیا ہے کہ بس رب کو راضی کرنا ہے. اور جب کوئی بھی شخص آ کے اس کار خیر کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک ضرور دیا جلتا ہے کہ اس روشنی میں بھی شامل ہونا میں بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاؤں. واہ. اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ناظرین ایک وقفے کا وقت بچاتا ہے اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब आबिद मक्की और मोहतरम राना ज़हीर बाबर, और हमारा उन्वान माह सयाम और दुखी इंसानियत की खिदमत। अच्छा आबिद भाई, खिदमत ये है कि हर शख्स को जो चीज़ भी मिल रही है वो खालिस हो, ठीक, माह सयाम में तो खुसूसन। लेकिन आपका ताल्लुक चूँकि एक फार्मा से है, तो अमूमी तौर पर मरीज़ों का शिकवा ये है कि उन्हें जाली अद्वियात मिल रही हैं, तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक कंसेप्ट बना हुआ है हमारे मुआशरे के अंदर, क्योंकि हमारा जो जिस तरह की अब ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि राना साहब भी फरमा रहे थे कि एक इदारा इन्होंने भी बनाया हुआ है ताकि लोगों को सस्ती से सस्ती और मयारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। तो उसमें कुछ तबकात ऐसे हैं जो इस चीज़ को डिसलाइक करते हैं कि उनका कारोबार ख़राब होता है, उनका बिजनेस ख़राब होता है। तो वो एक चीज़ अव्वल मैदान में छोड़ दिया जाता है कि जनाब वो वहाँ से जो चीज़ मिलेगी वो सही नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। ठीक, हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बार बार ये कहेंगे कि मैं इस इंडस्ट्री से 15 ईयर से ताल्लुक़ है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मेडिसिन जो है वो जेली नहीं होती। उसकी वजह यह है कि जब बाहर से प्रोडक्ट्स आ रही थी तो वो डॉलर्स में आती हैं, मल्टीनेशनल्स कंपनीज की, तो वो थोड़ी सी महंगी होती हैं क्योंकि उन्हें डॉलर में सारा पे करना होता है। लेकिन वही रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान जब खरीदता है तो वो साफ ज़ाहिर है मीठू होता है, तो वो सस्ता प्रोवाइड करता है। तो जिसकी वजह से जो है ना, वो लोगों को लगता है कि यार ये जो है वो गलत चीज़ है। लेकिन कीमत कम होने की वजह से, कीमत कम होने की वजह से लोगों को महसूस होता है। लेकिन क्योंकि हम इस फील्ड में 15 ईयर्स से हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम मेडिसिन जो है बार बार चेक की जाती है। पाकिस्तान का सिस्टम बहुत अच्छा है मेडिसिन का। हमारा जो जितने भी सिस्टम्स मौजूद हैं यहाँ पर चेक एंड बैलेंस के, वो तमाम बहुत अच्छे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की 621 कंपनियां पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं, और माशाल्लाह जो अद्वियात बना रही हैं। और तमाम माशाल्लाह तमाम, किसी का कोई ऐसा आज तक कोई स्कैंडल्स नहीं बना। एक आध दफ़ा किसी का स्कैंडल्स बना, लेकिन फ़ौरन ही उसे गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया और वो जो है उसे बिल्कुल ही किक आउट कर दिया गया। तो ये बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव सबका यही है कि यहाँ पर जितने भी, क्योंकि हम बहुत ही पसमानदा मुल्क हैं, हम तरक्की याफ्ता ममालिक में हमारा शुमार नहीं होता, तो यहाँ पर बेसिक्स जो नीड्स है वो ये है कि लोगों तक सही चीज़ पहुँचे और सही ट्रीटमेंट उनका हो। तो इस हवाले से हमारा इदारा भी सेहत फाउंडेशन जो है वो स्पेशली इस चीज़ पे हम करते हैं, और हम हर कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स को फ्री अद्वियात जाएं, ताकि वो आता है, घर से निकलता है, फैमिली के साथ निकलता है, बच्चे बीमार हैं जो हैं वो हम तक पहुंचता है, तो हम ये चाहते हैं कि उसकी फैमिली का सही ट्रीटमेंट हो। अगर आप सिर्फ यही सोच लें कि जो मेरे पास चलकर आ रहा है मैं उसका सही ट्रीटमेंट कर दूं, तो ये भी एक सदका जारिया है। मतलब आपने YCDO के ज़ेर एहतमाम चलने वाले हॉस्पिटल्स का जिक्र किया, मैंने भी बड़ी शोहरत सुनी और बहुत सारे लोग वहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो मरीजों को दी जा रही हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। इस वक्त हमारे तमाम हॉस्पिटल्स में रोज़ाना तकरीबन 3000 पेशेंट रोज़ाना चेक होता है। अच्छा, 3000 पेशेंट। तो
डॉक्टर्स जो है वो ग्रेजुएट डॉक्टर्स 24 आवर मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। और पेशेंट वहां पर आता है तो उसके पास 3 ऑप्शंस होती हैं, 10 रुपए, 30 रुपए और 50 रुपए। ठीक। गरीब आदमी जो है वो 10 रुपए में चेकअप टोकन ले सकता है, मिडिल क्लास 30 रुपए में चेकअप टोकन ले सकता है, और जो अमीर आदमी है वो 50 रुपीज में चेकअप टोकन ले सकता है। लेकिन अगर अमीर आदमी भी 10 में लेना चाहे तो हमें तो कोई इतराज नहीं, उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन है। ठीक हो गया। और ओपीडी डॉक्टर्स एवरी टाइम अवेलेबल हैं। जो लेबोरेटरी है वो तकरीबन मोस्टली टेस्ट जो है वो हम वहाँ पर कर रहे हैं, और मशीनरी जो है उस पर हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि डायग्नोस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डायग्नोस्टिक ठीक होगा तो ट्रीटमेंट ठीक होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में एक बायोकेमिस्ट्री मशीन होती है सेमी ऑटोमेटिक, वो 5 लाख में मिल जाती है, और वही जो ऑटोमेशन है वो 36 लाख में मिलती है। दोनों काम तो एक ही करती है, लेकिन हमने 5 लाख की बजाय 36 लाख की मशीन वहां पर रखी हुई है, ताकि डायग्नोस्टिक ठीक होगी तो ट्रीटमेंट ठीक होगी। क्वालिटी वाइज जो है हाँ, 24 घंटे इमरजेंसी की फैसिलिटी अवेलेबल है, 24 आवर। और जो है अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और सर्जरीज हमारी ब्रांचेस में एक महीने में 300 से जायद होती है, 300 से जायद सर्जरी जो है वो होती है। हर किस्म की सर्जरीज हम वहां पर कर रहे हैं, जुमा सिवाय जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हार्ट की सर्जरी है, हेड की है, उसके अलावा रूटीन में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वहां पर हो रही है। आर्थो का बहुत अच्छा सिस्टम है, और तमाम किस्म की सर्जरीज वहां पर हो रही है। और स्टैंडर्ड सर्जरीज का आप ये देखें कि गरीब आदमी जो है वो 11,000 रुपए में ऑपरेशन करवाता है, गरीब आदमी, और 11,000 से जो नीचे है वो आ जाता है डिजर्विंग कैटेगरी में, उसको हम ज़कात से ट्रीटमेंट देते हैं। और जो अमीर आदमी वो 13,000 रुपए में ऑपरेशन करवा लेता है। उस 13,000 रुपए में उसकी एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक सारी फैसिलिटीज हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये नहीं होता कि आपने 13,000 रुपए का उसका जो है वो चार्जेस लेने के बाद जब आप उसको डिस्चार्ज करें आपने उसको एक और लंबी स्लिप बनाकर दे दी है, ये जनाब डॉक्टर का विजिट है, ये आपके ओटी चार्जेस है, जिस तरह हॉस्पिटल्स में होता है। हम पेशेंट्स को जो है वो फुली फैसिलिटेट करते हैं, एडमिशन के बाद उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। और हर किस्म की जो यानी हमारा मकसद ये है कि पेशेंट जो है वो, और यही रीजन है कि हमारी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई हमारी बोर्डिंग नहीं है, कोई हमारा पेनाफ्लेक्स नहीं है। और जहां भी हम ब्रांच बनाते हैं, पहले दिन 10 मरीज होता है, दूसरे दिन 30 होता है, चौथे दिन 50 होता है, 10वें दिन 100 होता है। बेसिकली पेशेंट हमारी एडवर्टाइजमेंट है। पेशेंट जब वहां से ट्रीटमेंट करवा के जाएगा तो वो यकीनन हर बंदे को जाके बताएगा कि भाई वहां पे आपने जाना है। तो अभी माशाल्लाह इस वक्त जो है जो हमारे इस वक्त नियर टू कंप्लीशन हॉस्पिटल से 8 के अलावा एक कबीरवाला में, बिलावलपुर में एक बड़ा हॉस्पिटल नियर टू कंप्लीशन है। अच्छा। तौसा में रेतड़ा एक एरिया है, वहां पे तकरीबन उसको हम ईद के बाद ओपन कर रहे हैं। अच्छा। घंटाघर चौक पे एक क्लॉक टावर बिल्डिंग आपने देखी है, उसे भी हम जो है एक्सपेक्टेड है विद इन 2 मंथ उसे ओपन कर रहे हैं। अच्छा। सिटी हॉस्पिटल के साथ जो है एक नशात आर्केड की बिल्डिंग है, वो भी जो है नियर टू कंप्लीशन है। तो अब ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है कि एक शख्स आया, उसने यहाँ से मेडिसिन ली और वो साहिब हैसियत था, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई कि यार मेरे इलाके में अस्पताल बनना चाहिए। वाह वाह वाह। ठीक है, उसने जगह भी खुद ही प्रोवाइड की, पैसे भी खुद ही दिए। तो ये सारा जो है ये सारा ट्रस्ट पे चलता है कि जब आप सर्विस बेहतरीन देते हैं और जो लोग दे रहे हैं उनको नजर आ रहा है। अब आप देखें ना कि 2000 लोगों की जो सहरी और अफ्तारी है उस पे रोजाना 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हमारा आ रहा है, और मेहनत उसके अलावा है। हाँ, उसमें तो पूरी टीम है ना, कोई छोटा काम तो नहीं है। और दूसरा ये कि सहरी अफ्तारी में 100% पार्सल होता है, बिठा के नहीं खिलाते। पहले हमने बिठा के खिलाया था, लेकिन फिर हमने इसको माइनस इसलिए कर दिया। मैंने पहले भी ये बात की थी कि जब कोई गरीब आदमी अफ्तारी के लिए आता है और उसके घर में भी किसी ने रोजा रखा हो तो दिल उसका उधर ही लगा रहता है। तो उसमें यह है कि वो जो भी शख्स आता है, और जो सफेद पोश लोग हैं मैंने देखा है कि वो अपने मुंह को छुपा के आते हैं,
ماسک لگا کے آتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس طرح جو ہے بہت یعنی ذہنی اور ذہنی تسکین اور اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی کے لیے یہ کام جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ معصوم شاہ روڈ پہ کسی ٹائم افطاری کے وقت جائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ 1000-1500 پیکٹ جو ہے وہ بنا ہے، اور 6 بجے ہم نے شروع کیا ہے اور 40 منٹ میں جو ہے وہ تقسیم. ہاں میں نے دیکھا ایک دفعہ میں گزرا ماشاءاللہ وہاں رش تھا اور لوگ جو ہیں وہ لے کر جا رہے تھے. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا، بلکہ ہمارے ناظرین کو بھی اس معاملے میں آگاہ کیجیے کہ یہ جو چراغ سے چراغ جل رہا ہے، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، تو آپ کی جو ممبرشپ ہے وہ عوام و خواص کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ کے شانہ بشانہ وہ اس کار خیر میں شریک ہو سکتے ہیں؟ جی ہماری ماشاءاللہ وہ کافی برانچز ہیں، اور ملتان کے اب اس وقت موسٹلی لوگ وائی سی ڈی کو جانتے ہیں. کوئی بھی شخص وائی سی ڈی او کا ممبر بننا چاہے اور اس کا حصہ بننا چاہے، وہ کسی بھی برانچ پہ جا کے جو ہے وہ اپنی ممبرشپ کروا سکتا ہے. تو کوئی بھی شخص 500 روپے ماہانہ دے کر جو ہے وہ ممبر بن سکتا ہے کم سے کم. اور اس وقت ہمارے جو ہے ماشاءاللہ 500 روپے سے لے کر 5000 10,000 20,000 50,000 لاکھ روپے تک کے منتھلی ممبرز ہیں. تو دوسرا یہ کہ جو بندہ جو بھی شخص ممبر بن جاتا ہے تو ہماری ہر برانچ میں ایک ممبر کیٹیگری ہے، تو وہ پھر مستقل اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے. یعنی اس کو ہر سروس میں بطور ممبر ہم اس کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں عام آدمیوں سے. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اتنی خوبصورت بات یہ ہے کہ کوئی وائی سی ڈی او کا جو شخص ممبر بن جائے، دوران ممبرشپ وفات پا جائے، تو وائی سی ڈی او جو ہے، وائی سی ڈی او فیملی جو ہے، اس کی پوری فیملی، اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت، اس کی پوری رسپانسبلٹی. اور یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ جو ہے اس کا پارٹ بن جائیں. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ جو ہے ذہنی طور پہ آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کے 400 بھائی ہیں یا 500 بھائی ہیں. کفالت کا تصور ہے، کفالت کا جو ہے وہ بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے. کیا بات ہے. تو ابھی بھی بلکہ ہمارے بہت سارے ایسے ممبرز ہیں جن کے بچوں کی ہم کفالت کر رہے ہیں. ہمارا سٹاف ایسا ہے کہ سٹاف ہمارا پچھلے دنوں کا انتقال ہو گیا، اور ہم نے دیکھا کہ بھئی اس کا گھر میں یعنی پردہ دار خاتون 2 بچے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک کفالت کا نظام بھی چل رہا ہے. جناب عابد مکی، ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آپ سے ایک خصوصی میسج کے منتظر ہیں. میسج صرف یہی ہے اس تو کہ انسان کہ اپنا جتنا بھی اپنا ٹائم ہے، اپنی محبت ہے، آپ کے پاس جتنے ریسورسز موجود ہیں، وہ کوشش کریں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے جو اپنا پسا ہوا طبقہ ہے، پسماندہ جتنے بھی علاقے ہیں، پسماندہ جتنی بھی کیٹیگریز ہیں، وہاں تک لے جائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ، کیونکہ جب یہ قوم اٹھے گی تو سب کچھ اٹھے گا، اگر یہ قوم ڈوب گئی تو سب کچھ ڈوب جائے گا. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے جتنے بھی پسماندہ علاقے ہیں، جتنے پسماندہ لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو سہارا بنے، ٹھیک ہے، یتیموں کی، بیواؤں کی کفالت کریں. اور جتنی بھی خاص طور پہ ہمارا بیمار طبقہ ہے، جب ہم ہاسپٹلز میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا دلی دکھ ہوتا ہے. اپنی صحت کو غنیمت سمجھیں اور کوشش کریں کہ ان سے جتنا، جس طرح صاحب ماشاءاللہ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ مزید ان کے ادارے کو بہت بڑا جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں یہ، اللہ میں مزید ان کے ادارے کو 4 چاند لگائے. اور ہم اپنے طریقے سے بھی جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہماری ایک آرگنائزیشن ماشاءاللہ جتنا ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جس طرح بڑھتا جا رہا ہے انشاءاللہ کام مزید انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا. باقی ہمارے جو سینئرز ہیں، ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں، جو ہمارے سی او ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں تک وہ چیز پہنچائی جائے جس کے وہ حقدار ہیں. اچھا رانا صاحب، خصوصی میسج سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ پولیس آفیسر ہونے کے ناطے آپ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، آپ کی ایک بڑی خاص حیثیت ہے اپنے شعبے میں. تو اس مصروفیت میں سے یہ جو سماجی خدمت ہے، اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری جو پوری زندگی ہے وہ ایک لفظ کے گرد گھومتی ہے، وہ ہے پریورٹی. پریورٹی، ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ اب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس
अभी किसी की भी कोई कॉल आ जाए ऐसी जिस पे मुझे यहाँ से मूव करना है, अब ये मेरी प्रायोरिटी है कि मैंने इस प्रोग्राम को मुकम्मल करना है या छोड़ के जाना है। तो ये जो काम आज इतना नीचे से ऊपर तक आया है, इसमें सिर्फ हर टाइम में, हर स्टेज पे, हर एज में, हर ओहदे में, हर पोस्टिंग में इस काम को प्रायोरिटी दी। वाह वाह वाह। और यही वजह है, ये असल में हम सब लोग जो है वो एक मखसूस जो खौल है उसके अंदर है। लेकिन ये है कि कोई मुश्किल काम नहीं है। जब भी आप अल्लाह की रजा के लिए एक स्टेप लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला हाथ बन जाते हैं, आंखें बन जाते हैं। आप सोचेंगे कि मैंने ये काम अल्लाह की रजा के लिए करना है, बशर्त ये कि आपका मकसद अल्लाह की रजा के अलावा कोई और है नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला उसमें बरकतें ना डाल दे। अल्लाह ताला तो उस काम में पार्टनर हो जाते हैं जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो रहा हो, और जिसमें अल्लाह पार्टनर हो जाए, हिस्सेदार हो जाए, वो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह उसमें कोई रुसवाई दे सकते हैं? नामुमकिन है। बरकतें और रहमतें इस ऐसे काम का हिस्सा है। और आप पैगाम कह रहे थे कि पैगाम आखिर देना है, पैगाम भी तो यही है ना कि हमें अपना हिस्सा डालना है। और पैगाम भी यह है कि एक लफ्ज है एहसास। एहसास जो है वो हम अपनी एक रूटीन में जब अपनी लाइफ को गुजार रहे होते हैं, बेसिकली हमारे अंदर से एहसास खत्म हो जाता है। जो बुनियाद है। हाँ, एहसास खत्म हो जाता है। अब एज अ पुलिस ऑफिसर मैं अपने बतौर SHO अपने कमरे में हूँ, और मैं बेल दूं और संतरिया और शख्स मेरे सामने खड़ा हो और उसको मैं कहूं कि इसको पकड़ के हवालात में बंद कर दो, लेकिन अगर यही काम मेरे साथ हो, अगर ये एहसास मेरे अंदर खत्म हो गया तो ये काम मेरे लिए आसान हो जाएगा, मैं किसी को भी अंदर कर सकता हूँ। वाह। एक डॉक्टर जो है वो जो रोजाना सर्जरी करता है और काटता है, आपके लिए मेरे लिए काटना तो बड़ा मुश्किल है। एक रिसेप्शन पे, जो हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे एक शख्स बैठा हुआ है, उसने 8 घंटे या 12 घंटे बैठना है, और उस पे मरीज ही आए जा रहे हैं, उसमें यह एहसास ही खत्म हो गया कि सामने मरीज है। अगर उसमें यह एहसास हो कि मेरी माँ या मेरी बहन मरीज मेरे सामने खड़ी है, तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। वाह। एक दुकानदार जो सुबह से शाम तक जिसपे कस्टमर आए जा रहे हैं, वो सिर्फ सौदा बेच रहा है, वो ना किसी की शक्ल को देख रहा, ना किसी की मजबूरी का एहसास कर रहा है। वो मादियत परस्ती में हम मजमूई तौर पे हम जिस ओहदे पर जिस काम में कर रहे होते हैं, हम वहां पे बेहिस हो जाते हैं। और जब हमारे अंदर से एहसास खत्म हो जाता है तो फिर इंसानियत खत्म हो जाती है। बस मेरा मैसेज यही है कि हर शख्स जो जिस जगह पर काम कर रहा है, वो अल्लाह की रजा के लिए अपने एहसास को बेदार रखे। वाह वाह। कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ, अगर यही काम मेरे साथ हो तो मुझे कैसा फील हो। तो यही अवेयरनेस है और यही कर रहा हूँ। वाह 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 वाह। नाज़रीन, आपने सुना, देखा, महसूस किया कि YCDO फैमिली जो है उसमें किस तरह इजाफा हो रहा है और किस तरह फिर लोगों की किफ़ालत हो रही है। जनाब राना ज़हीर बाबर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुशियाँ दे, बरकतें अता फरमाए, और इस कार्य खैर में आप इसी तरह जो है वो कारवां के मीरे कारवां के तौर पर चलते रहें। आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम रमज़ान की शान में तशरीफ़ लाए। आप मक्की भाई, आपका भी शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने सेहत फाउंडेशन के हवाले से अपनी खिदमत का जिक्र किया। और नाज़रीन, जो बातें हो रही थी, शायर होने के नाते मेरे जहन में उसके बैकग्राउंड में ना कुछ अशार चल रहे होते हैं, तो मैं 2-3 अशार जो है वो ज़रूर कोट करना चाहूँगा। एक तो ये कि मैंने इनको इतना देखा जितना देखा जा सकता है, मैंने इनको इतना देखा जितना देखा जा सकता है, फिर भी साहिब 2 आँखों से कितना देखा जा सकता है। और एक दूसरा शेर मक्की भाई के, जो आईने को भी हैरत में डाल देता है, जो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। और नाज़रीन, आखिरी शेर जिस पर मैं गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा कि दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, जैसा किसी का ज़र्फ था वैसा दिया गया। रमज़ान ईशान से मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.